Hello everyone, myself Rinku Mistree from the 6th sem of the BFAM. My mentor is Dr. Jigar Vyas. So, today I will tell you, I am here to introduce to the nanoparticles. So, first of all, what is the nanoparticles? So, nanoparticles are defined as which is the solid particles, solid colloidal particles or the ultra fine particles, usually defined as a particle of a matter which is between 1 to 100 nanometer in the size of the diameter. So अल्ट्रा पार्टिकल्स और द नैनो पार्टिकल्स जो साइज रेंज उसका होता है वो 1 to 100 नैनोमीटर डायमीटर का होता है. माइक्रोमोलिक्यूल मटेरियल जैसे उसको साइज रेंज जो होता है उसका 1 to 100 नैनोमीटर. नैनो पार्टिकल्स आर यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स. उसका साइज रेंज 1 to 100 नैनोमीटर तो होता ही है, पर लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उसका साइज 100 to 2500 नैनोमीटर और द कोर्स पार्टिकल्स 2500 to 10,000 नैनोमीटर. सो नाउ what is the content of the nanoparticles? So here we see the introduction, then concept, then preparation, then characterization, applications, advantages, disadvantages or the conclusion. So first of all, introduction. So what is the introduction of the nanoparticles? So nanoparticles are the solid colloidal particles ranging from 1 to 100 नैनोमीटर इन द साइज. नैनोपार्टिकल्स जो होता है उसका साइज रेंज जो होता है जैसे बताया कि 1 to 100 इन अ डायमीटर. नैनोमीटर में उसको मेज़र किया जाता है. दे कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोमोलिकुलर मटेरियल्स इन विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिजॉल्व्ड एंड ट्रैप्ड और द एडजॉर्ब्ड और द अटैच्ड. Then classification of the nanomaterials. So nanomaterials are extremely small size which having at least one dimensions 100 nanometer or less. nanomaterials का जो classification होता है, so nanomaterials जो होते हैं वो साइज में एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और ड्वार्फ होते हैं. ड्वार्फ मीन्स स्मॉल साइज में होते हैं जो 1 डायमेंशंस 2 डायमेंशंस या फिर 3 डायमेंशंस में मेज़र किया जाता है. सो हियर 1 डायमेंशंस can be nanomaterials can be nanoscale means 1 dimensions का जो है उसका एग्जाम्पल है सरफेस फिल्म्स. देन 2 dimensions एग्जाम्पल strands और द फाइबर्स. देन 3 dimensions एग्जाम्पल नैनो पार्टिकल्स. सो दे कैन सिंगल फ्यूज्ड एग्रीगेट और द एग्लोमेरेटेड मीन्स वो फॉर्म्स करते हैं नैनो पार्टिकल्स. नैनो मटेरियल्स इंक्लूड्स द डेंड्राइट्स, then the nanotubes, then the quantum dots. Nanomaterial have application in the field of the nanotechnology. उसका जो एप्लीकेशन यूज जो होता है नैनो मटीरियल्स का जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है या फिर अदरवाइज केमिकल्स देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है. देन 0D उसका जो क्लासिफिकेशन हमने देखा कि 0D स्पीयर्स एंड क्लस्टर्स, then 1D nanospheres and nanowires, then 2D nanofilms and then nanomaterials. So here the image will show you the nanomaterials types. So first of all A 0D spheres or the cluster, then B 1D nanofibers, then C 2D nanofilms and then D last nanomaterials. So here we will see the definition of the nanoparticles. So according to the American Society for the Testing Materials standard definition nanoparticles जो American Society for Testing Materials जो है उसके अकॉर्डिंग नैनो मटीरियल्स जो नैनो पार्टिकल्स है उसका डेफिनेशन क्या है. सो नैनो पार्टिकल इज़ वन हुज लेंथ इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर. आगे बताया ऐसे ही उसका साइज नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है जो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर और 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और द 3 डायमेंशंस में उसकी रेंज होती है. इट पोजेज द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लार्ज सरफेस एरिया. मीन्स हियर वाई आर नैनो पार्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे शो वेरिंग प्रॉपर्टीज like a physical property, chemical, then biological. So here physical properties such as the optical properties, then electrical, then mechanical. So here including the large surface area, then the novel this chemical, physical or the biological properties.
Nanoparticles or the ultrafine particles is usually defined as a particle of a matter दैट इज़ बिटवीन द 1 to 100. जैसे हमने देखा कि नैनो पार्टिकल का जो साइज़ रेंज है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक का है, और वो जो लार्ज पार्टिकल है उसका साइज़ 500 नैनोमीटर और अप टू 500 नैनोमीटर. देन ट्यूब्स जो होती है जो उसका साइज़ एक्सट्रीमली, जो कोर्स पार्टिकल्स है उसका साइज़ भी 2500 नैनोमीटर से लेकर 10,000 नैनोमीटर तक का होता है. सो objectives. Now objectives, what is the objectives? So introduction, then various methods of the preparations, then pharmaceutical assets, then therapeutical applications, then surface engineering of the nanoparticles, and last in vivo fat and biodistribution of the nanoparticles. So हमने introduction देखा, then ये सब उसके objectives हैं जो nanoparticles में यूज़ होते हैं. So these image will show फर्स्ट इमेज मीन्स इसका साइज रेंज जो होता है वो हमें मेज़र यहाँ पे मेंशन किया गया है. जो फर्स्ट इमेज जो है उसमें पार्टिकल्स मीन्स ग्लूकोज है या प्रोटीन है, डीएनए, वायरस, सबका जो साइज रेंज है यहाँ पे दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का है, देन प्रोटीन का है, देन डीएनए, देन वायरस, देन सेल, सॉल्ट ग्रेन एंड द टेनिस बॉल. ऐसे ही नीचे जो नैनो, ये साइज़ जो है वो नैनोमीटर्स में मेज़र की गई है. देन मिसेल्स, देन लिपोसोम्स, डेंड्राइमर्स, गोल्ड नैनोशेल्स, क्वांटम डॉट एंड द पॉलीमर्स, उसका साइज़ भी इसी से मेज़र किया जाता है. देन माइक्रो और नैनो मटेरियल जो स्केल है उसके हिसाब से भी यहाँ पे साइज़ मेज़र किया गया है. यहाँ पे लंग अब ऑयली है, उसका साइज़ है 400 माइक्रोमीटर. देन पोलन, उसका साइज़ है 100 माइक्रोमीटर. देन बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर. वायरस जो है 10 to 150 नैनोमीटर. देन ऐसे ही नैनो मटेरियल नैनो स्केल में, नैनोमीटर में भी उसका साइज़ रेंज दिया गया है. जैसे कि यहाँ पे न्यूरॉन्स का 200 माइक्रोमीटर है, हेयर जो है उसका 60 माइक्रोमीटर है. देन रेड ब्लड सेल्स जो है उसका 7 माइक्रोमीटर है. देन डीएनए हेलिक्स जो है, डीएनए हेलिक्स डायमीटर उसका 2 नैनोमीटर है. देन 1 नैनोमीटर, देन 0.1 नैनोमीटर. ऐसे भी C60 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो आता है उसका 1 नैनोमीटर साइज़ है. देन कॉन्सेप्ट ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. सो कॉन्सेप्ट क्या है नैनो पार्टिकल्स के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट में, नैनो पार्टिकल्स जो है उसका दो टाइप दिया गया है, नैनोस्फीयर और द नैनो कैप्सूल्स. तो नैनोस्फीयर जो है वो क्या इंक्लूड करता है? तो मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर और द मॉर्फोलॉजी इंक्लूड करता है. और नैनो कैप्सूल्स जो होता है उसमें मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर जो है वो ऑयल कोर कंटेनिंग होता है. जो मेम्ब्रेन जो उसकी है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑयल कंटेनिंग होता है. सो यहाँ पे फिगर है नैनोस्फीयर और द नैनो कैप्सूल्स की, जहाँ पे पॉलीमेरिक मैट्रिक्स भी दिखाया गया है. देन यहाँ मेम्ब्रेन दिखाई गई है जो ऑयल कोर कंटेनिंग है. देन इनर कोर भी दिखाया गया है, सो इट इज़ ऑयल कोर कंटेनिंग. देन टाइप्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. तो with 2 types of the nanoparticles, then organic, first organic and then second inorganic. So यहाँ पे नैनो मटेरियल्स मीन्स ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स और द इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स दो टाइप्स दिए गए हैं. सो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो है, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स में सम एग्जांपल्स लाइक पॉलीमेरिक मिशेल्स हैं, डेंड्राइमर्स हैं, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स, polymers, drug conjugates and the liposomes. And inorganic nanoparticles, so it includes the silica nanoparticles, then gold nanoparticles, then carbon nanotubes, then quantum dots, nanographene and the magnetic nanoparticles. So nanoparticles morphology and the structure, यहाँ पे भी यही है कि हमने जो देखा, जो साइज़ रेंज है उसका 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो पार्टिकल्स क्या है कि नैनो पार्टिकल्स को हम 2 वर्ड में डिराइव करते हैं, नैनो और द पार्टिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नैनो है वो डिराइव्स होता है ग्रीक वर्ड मीन्स नैनोज, उसका मतलब है नैनोज विच मीन्स ड्वार्फ और एक्सट्रीमली स्मॉल. जैसे हमने देखा कि नैनो पार्टिकल्स की साइज रेंज 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक है, मीन्स वेरी स्मॉल. It can be used as a prefix
for any unit of the mean of a billionth of a unit. सो हियर नैनो जो है उसके शेप्स ग्रेट वैरायटी मीन्स शेप्स कई तरह के शेप्स होते हैं. सो हम उसको एज अ नैनोस्फीयर, नैनो रोड्स, नैनो चेन्स, नैनो स्टार्स, देन नैनो फ्लावर्स, देन नैनो रीफ्स, देन नैनो विस्कर्स, देन नैनो फाइबर्स एंड द नैनो बॉक्सिस. ऐसे कई नाम से हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो नैनो पार्टिकल्स का जो शेप है, नैनो पार्टिकल्स के जो शेप मीन्स नैनो पार्टिकल्स का जो शेप है वो डिटरमाइन किया जाता है. कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो बाय इंट्रिंसिक क्रिस्टल हैबिट ऑफ द मटेरियल और इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड द क्रिएशंस. सो हियर सम एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स में रिक्वायर्स स्पेसिफिक शेप्स एज वेल एज द स्पेसिफिक साइज और द साइज रेंज. अब एमोर्फस पार्टिकल्स होते हैं, एमोर्फस पार्टिकल मीन्स फाइन पार्टिकल्स की जो स्टडी होती है उसे हम माइक्रोमैग्नेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं. सो प्रिपरेशन, नाउ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. सो नैनो पार्टिकल्स की जो प्रिपरेशन है कैसे की जाती है मीन्स पोलीमराइजेशन बेस्ड टेक्निक है. मीन्स प्रिपरेशन जो होता है माइक्रो नैनो पार्टिकल्स का वो पोलीमराइजेशन बेस्ड टेक्निक बेस्ड मेथड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द पोलीमराइजेशन? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलीमराइजेशन क्या होता है. सो पोलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन. मीन्स जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस देते हैं और फॉर्म करते हैं एक पोलीमर. मीन्स वो 2 और 3 डायमेंशंस के नेटवर्क्स में एक पोलीमर फॉर्म होता है जिसे हम पोलीमराइजेशन टेक्निक बोल सकते हैं. सो पोलीमर्स, उसमें कौन कौन से पोलीमर्स यूज्ड होते हैं? तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, देन पॉली एक्रिलामाइड, देन पॉलीब्यूटाइल साइनोक्राइलेट. सो टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे दी गई है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स इन विच मीन्स यहाँ पे इमल्शन कौन से बेस्ड पे ये प्रिपरेशन होती है? तो इमल्शन पोलीमराइजेशन टेक्निक, देन सेकेंड डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन टेक्निक, then third interfacial polymerization technique, then fourth controlled or the living radical polymerization technique. Okay, now first immersion polymerization. So immersion polymerization जो है यहाँ पे क्या होता है कि पुअरली वाटर सॉल्युबल मोनोमर्स कंपाउंड्स जो होते हैं यहाँ उसके लिए यूज्ड किया जाता है इमर्शन पोलीमराइजेशन. सो उसमें प्रोसेस कन्वेंशनल और द इनवर्स. कन्वेंशनल में क्या होता है कि कंटिन्यूस जो फेज होता है इन एक्वियस फेज मीन्स एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ द इमल्शंस. एंड इन्वर्स प्रोसेस में क्या होता है कि कंटिन्यूस फेज इन ऑर्गेनिक मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. मैकेनिज्म यहाँ पे मिसेलर न्यूक्लिएशंस और द होमोजीनियस के थ्रू हमने ये मैकेनिज्म यहाँ से होती है. देन 2 टाइप्स ऑफ द इमल्शन पोलीमराइजेशन मीन्स मिनी इमल्शंस भी और माइक्रो इमल्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी इमल्शंस में क्या होता है कि मिनी इमल्शंस पोलीमराइजेशन टेक्निक जो है वो कंसिस्ट करती है वाटर, देन मोनोमर मिक्सचर्स, को स्टेबिलाइजर्स, सर्फेक्टेंट एंड द इनिशिएटर्स. ओके, देन इन द मिनी इमल्शन प्रिपरेशन मेथड जो है उसमें लो मोलिकुलर मास कंपाउंड ज़्यादातर यूज़ होते हैं और वो यूज़ होते हैं एज अ को स्टेबिलाइजर्स एंड द हाई शेयर डिवाइस मीन्स अल्ट्रासाउंड. देन सेकेंड माइक्रो इमल्शन पोलीमराइजेशन. सो माइक्रो इमल्शन पोलीमराइजेशन जो है इज़ अ काइनेटिकली डिफरेंट इमल्शन पोलीमराइजेशन. इमल्शन पोलीमराइजेशन जो है उससे डिफरेंट है माइक्रो इमल्शन पोलीमराइजेशन. उसमें जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल होती है. सो एज कॉल्ड एज अ माइक्रो इमल्शन. देन प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोनोमर होता है उसे डिज़ोल्व करना पड़ता है हमें एक्वियस मीडियम में. सो जब हम एक्वियस मीडियम में उसे डिज़ोल्व करते हैं एक्वियस फेज में विच कंटेन्स जो एक्वियस फेज जो है वो इनिशिएटर्स, सर्फेक्टेंट्स हमने आगे देखा कि जो कंसिस्ट करता है मिनी इमल्शंस जो है वो कंसिस्ट करता है वाटर, देन मिक्सचर्स, मोनोमर मिक्सचर्स, को स्टेबिलाइजर्स, सर्फेक्टेंट, इनिशिएटर्स. सो देन दिस सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं. सो फर्दर प्रोसेस में उसका एजिटेशन होगा, विगरस एजिटेशंस लीड्स टू इमल्शन फॉर्मेशन. एंड देन
हमें लास्ट में पार्टिकल्स मिलेगा जो उसकी साइज होगी 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक. सो यहाँ पे दो फिगर दी गई है, कन्वेंशनल और द इनवर्स फेज की, प्रोसेस की. सो यहाँ पे ऑयल इन वाटर और द वाटर इन ऑयल टाइप का दो इमल्शंस दिया गया है. सो नाउ नेक्स्ट डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन. फर्स्ट हमने देखा इमल्शन पोलीमराइजेशन जिसमें कन्वेंशनल और द इनवर्स. सो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके. सो अब हम देखेंगे डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन. इन इमल्शन पोलीमराइजेशन में उसमें क्या होता है कि मोनोमर जो होता है वो यूज होता है एज अ सर्फेक्टेंट, देन को सॉल्वेंट्स, देन इनिशिएटर्स. इन केस ऑफ दिस मोनोमर्स इज डिजॉल्व इन द एक्वियस मीडियम. डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो मोनोमर होता है वो डिजॉल्व करते हैं हम एक्वियस मीडियम में. इसमें सर्फेक्टेंट ज़रूरी नहीं है. जहाँ तक हमने देखा कि इमल्शन पोलीमराइजेशन में ये एज द यूज होता है द सर्फेक्टेंट और द इनिशिएटर्स, को सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा. पर इसमें डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन में सर्फेक्टेंट इज़ नॉट नेसेसरी. डिस्पर्जन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो टेक्निक्स यूज्ड होती है टू प्रिपेयर द बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम द PLA, पोली DL ग्लाइकोलाइट्स, देन पोली DL लैक्टाइड को ग्लाइकोलाइट, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सो डिफरेंट मेथड है जिससे हम डिस्पर्जन पोलीमराइजेशन में कर सकते हैं. सो first of all, the brief methods are introduced here: solvent evaporation, then nanoprecipitation, then emulsifications, salting out, dialysis, and the supercritical fluid technology. Now next, characteristic of the nanoparticles. So nanoparticles के characteristic कौन कौन से properties है? So first of all here, size and the morphology, then specific surface, then surface charge and the electrophobicity, then fourth surface hydrophobicity, and then fifth last density. So here जो figure है उसमें हमने कैरेक्टराइजेशन मीन्स उसका प्रॉपर्टी, नैनो पार्टिकल्स जो है उसका प्रॉपर्टी दिया है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेप है, कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर्स, देन सरफेस एरिया, सरफेस केमिस्ट्री, देन उसका साइज, देन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, देन एग्लोमेरेशन स्टेट एंड द कंसंट्रेशन. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. सो नैनो पार्टिकल्स को जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स भी यहाँ पे दी गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन, देन कंडेंसेशन पार्टिकल्स काउंटर CPS मीन्स फोटोन, देन यहाँ पे दिया गया है फोटोन को रिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. दीज आर द टेक्निक्स विच आर डिटर्मिनेशंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. देन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी हम कैरेक्टराइजेशंस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोब माइक्रोस्कोपी, देन एक्सरे डिफ्रैक्शन, देन नैनो पार्टिकल्स ट्रैकिंग एनालिसिस, देन डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, देन नैनो पार्टिकल सरफेस एरिया मॉनिटर, then Raman, then US, V's and the IR spectroscopy. So these are the techniques which are used as a measuring the characteristic of the nanoparticles. Then next, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो लाइट माइक्रोस्कोपी और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं. यहाँ पे दो प्रोसीजर दिखाई, मैकेनिज्म दिखाया है कि यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स. मीन्स यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिखाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू फिगर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन एंड द कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन, उसमें भी कई टेक्निक्स दी गई है जिससे हमें कैरेक्टराइजेशन जो है नैनो पार्टिकल्स की वो आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं. सो लाइट माइक्रोस्कोपी और द इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, दो माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. और जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन है उसमें बल्क स्ट्रक्चर, देन सरफेस स्ट्रक्चर, देन सरफेस टोपोग्राफी एंड द माइक्रो स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे टेक्निक्स दी गई है, उसे हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन मेज़र कर सकते हैं. और कंपोजिशनल जो कैरेक्टराइजेशन है वहाँ पे बल्क कंपोजिशन, देन सरफेस कंपोजिशन और द इम्प्योरिटीज़ एंड द लोकल एनवायरनमेंट, ये ESR है, NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, EPMA, AES जैसे टेक्निक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं. देन एप्लीकेशन ऑफ द
नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स जो है, नैनो पार्टिकल्स कौन कौन सी जगह यूज़ होते हैं, मीन्स कहाँ पे उसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री जो है उसमें फार्मा इंडस्ट्री ज़्यादातर यूज़ होता है। देन यहाँ पे हमने दिखाया है एप्लीकेशन और द पर्पज़। सो फर्स्ट कैंसर थेरेपी जो है, कैंसर थेरेपी में क्या होता है कि यहाँ पे हमने पर्पज़ दिया गया है क्यों कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है नैनो पार्टिकल्स। सो टारगेटिंग एंड एनहेंस्ड अपटेक ऑफ द एंटी ट्यूमर एजेंट, देन टारगेट करते हैं। देन सेकंड है इंट्रासेलुलर टारगेटिंग, उसमें टारगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस को देखा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। देन प्रोलॉन्ग सिस्टमिक सर्कुलेशंस, ड्रग इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट है ड्रग की ज़्यादातर लंबे समय तक रहे, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन वैक्सीन एब्जॉर्प्शन, एनहेंस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। देन अदर एप्लीकेशंस में क्या होता है, मीन्स उसका दूसरा कौन सा एप्लीकेशंस है, so crosses the blood brain barrier, then improved absorption, delivery of the anti-cancer drugs, then hepatic metastasis and the reduction in toxicity of anti-cancer drug. Now ज़्यादातर used in almost all field of the science, जो ये नैनो पार्टिकल्स हैं used in almost all field of the science, like the mostly wide variety in application in industrial, then such as the textile industry, then pharmaceutical industry, cosmetic industry, food, ज़्यादातर यहाँ पे हम नैनो पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे मेडिसिन्स में क्या होता है कि न्यूमरस क्लिनिकल एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसे, फ्रॉम द कैरीज ऑफ द फॉर अ ड्रग एंड जीन डिलीवरी टू ट्यूमर। Polymeric missile nanoparticles are used to deliver drugs to tumor, and the carbon nanoparticles called nanodiamonds. So जो नैनो डायमंड्स है, जो कार्बन नैनोमीटर्स हैं, कार्बन नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं हम उसे नैनो डायमंड्स कह सकते हैं। सो बीइंग टेस्टेड फॉर यूज इन द मेडिकल एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उसे। नैनो पार्टिकल्स जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अटैच्ड होते हैं नैनो डायमंड से, जो इंक्रीज करते हैं बोन ग्रोथ और जॉइंट और द डेंटल इम्प्लांट्स। देन सेकेंड एनवायरमेंट में क्या होता है कि नैनो पार्टिकल्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, इम्प्रूव करता है एनवायरमेंट को। फॉर इंटेंस फोटोलाइटिक कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स आर बीइंग टेस्टेड टू ब्रेक डाउन ऑयल इनटू द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। सो यहाँ पे नीचे फिगर में कई सारी एप्लीकेशंस दी गई है नैनो पार्टिकल्स की, जो हम यूज़ कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स। और कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, देन एनर्जी, देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, देन कंज्यूमर गुड्स, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और द मेडिसिन्स। नाउ नैनो पार्टिकल्स यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे दो फिगर हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज़ हो, कैंसर ट्रीटमेंट डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है नैनो पार्टिकल्स, उसका दो फिगर्स दिया गया है। नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। सो नैनो पार्टिकल्स के एडवांटेज क्या है, सो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, देन हायर कैरियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, देन फेसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टॉक्सिक है और डोजिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता है। सो दीज आर some advantages of the nanoparticles. Now disadvantages. So what are the disadvantages? So polymeric nanoparticle poses limited drug loading capacity, means उसका drug loading capacity जो है वो limited है। On repeated administration, जब repeated administration होता है तो some toxic metabolized form होते हैं जो toxic है। Then slowly biodegradable slow है, और एबिलिटी जो है उसकी डोजेस एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। नाउ कंक्लूजन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? पोलीमेरिक पार्टिकल कैरियर सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू टारगेट दिस इन्फ्लाम्ड टिश्यू। टारगेट टिश्यू जो होता है हमने देखा कैंसर थेरेपी में यूज्ड होता है। सो देन डिलीवरी सिस्टम जो है उसका हाई एफिकेसी देता है और रिड्यूस्ड करता है एडवर्स इफेक्ट। थैंक यू गाइस।